हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 8 के इंग्लिश के बुक का लेसन 8 एट स्कूल। सो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एट SCHOOL स्कूल, एट स्कूल मीन्स स्कूल में। ओके, सो वर्ड मीनिंग मीन्स शब्दकोश। So first meaning is, let's look at the first meaning is mind. Mind means दिमाग, mind means दिमाग, mind, mind means दिमाग। Second, recollect, recollect, recollect means याद करना या स्मरण करना, recollect means याद करना या स्मरण करना, to remember। Third is mediocre, mediocre means average, not very good, mediocre means मामूली या तो फिर सामान्य, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं, average or not very good। Okay, so fourth one is SUBURBAN, suburban means शहर के आसपास का स्थान। ओके, मीन्स शहर के आसपास का जगह। फोर्थ वन इज सोल मीन्स एकमात्र या एक ही, सोल मीन्स एकमात्र या एक ही। Sixth one is literally means सचमुच या वास्तव में, literally means सचमुच या वास्तव में। And the seventh one is POKE, poke, fun at means मजाक उड़ाना, poke fun at means मजाक उड़ाना, make fun of। Okay, and the eighth one is memory, memory means याददाश्त या स्मरण शक्ति, memory means याददाश्त या स्मरण शक्ति। Ninth, distaste means नापसंद, distaste means नापसंद। And the 10th one is taken, taken to task means डांटना, taken to task means scold, डांटना। 11th one is deceive, deceive means धोखा देना। 12th one is PRI, आप यहाँ स्पेलिंग करेक्ट करोगे, pilgrimage, pilgrimage means a journey to a holy place for religious reason, pilgrimage means तीर्थ यात्रा, pilgrimage means तीर्थ यात्री, जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं उनको पिलग्रिमेज कहते हैं, और पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ यात्रा। ओके, 13th INDELIBLE, indelible means अमिट अक्षय जो मिटाया ना जा सके, indelible means अमिट अक्षय जिसे मिटाया ना जा सके, just like unremovable, okay। 14th IMPRESSION, impression means भाव विचार, impression means भाव विचार, impression means भाव विचार, an idea, feeling, an opinion about something। Okay, and the 15th one is AGONISED, agnosed, LAMENT, agnosed, lament means विलाप शोक। ओके, जैसे दुख, विलाप शोक दुख, a strong experience of grief and sorrow। 16 CONCERTING, constructing means धून बजाने का यंत्र, an instrument on which musical can be played। Okay, 17th HAUNT, hunt means
सदा साथ रहना, हंट मीन्स सदा साथ रहना या हमेशा साथ रहना, ओके। 18th वन इज ORDEAL, ऑडियल मीन्स कठिन या परीक्षा, कठिन या परीक्षा, ओके, सर्वल लास्ट ऑफ कैरेक्टर। 19th जिम्नास्टिक, GYMNASTICS, जिम्नास्टिक means a sport in which flexibility of the body is tested. जिम्नास्टिक means व्यायाम संबंधित, एक्सरसाइज से रिलेटेड। 20th aloofness और ABSTAINING, abstaining means दोनों का ही मतलब सेम होता है, बोथ मीनिंग आर सेम। ABSTAINING, abstaining means अलग रहना या बचते रहना, abstaining, और aloofness means give oneself away, okay। 21th PITEOUS, piteous means दया योग्य या करुणा योग्य, दया योग्य या करुणा योग्य, desiring और causing pity, okay। 22 CLUNG, clung means चिपका हुआ, clung means stuck to, okay, clung means stuck to, चिपका हुआ। 23 FALSE, false, NOTION, notion, false notion means गलत धारणा, false notion means गलत धारणा, wrong idea, okay। 24th PHYSICAL, physical, TRAINING, training, physical training means शारीरिक परीक्षण, physical training means शारीरिक परीक्षण, और sports exercise that is taught in school, okay। And the 25th is disciplinary, DICIPLINARIAN, disciplinary, disciplinary means नियम स्थापित करने वाला, पालन करने वाला, disciplinary means नियम स्थापित करने वाला या पालन करने वाला, person who believe in strict training or mind and body, okay। And the 26th is BENEFIT, benefit means advantage, laugh, benefit means advantage, laugh। And the 27th last one is curriculum, 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 curriculum means पाठ्यक्रम, curriculum means पाठ्यक्रम, framework on which lesson are based, okay। And 28th is COMPANION, companion means साथी या मित्र। 29th SHY, shy means शर्मिला। 30 although, ALTHOUGH, although means यद्यपि, हालांकि, okay, although means यद्यपि और हालांकि। 31st DECEIVE, deceive, deceive means धोखा देना, deceive means धोखा देना। And 32 AFFECT, affect means प्रभावित होना, affect means प्रभावित होना। 33 IDEAL, ideal means आदर्श, ideal means आदर्श। 34th INSPIRE, inspire, inspire means प्रेरित करना, inspire means प्रेरित करना। 35th NOTION, notion, notion means अवधारणा। 36 non-violence, NONVIOLENCE, non-violence means अहिंसा, okay। 37th civil disobedient movement means नागरिक अवज्ञा आंदोलन। 38th REBUKE, rebuke means डांटना। 39th AFFECTION, affection means प्यार स्नेह। 14th and the last one is ENIENT, lenient means उदार या नर्म, okay। So word meaning is finished. Let's start reading comprehension section, okay। Which section? Reading comprehension section। Answer the following question means सही, answer the following question means नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, okay, उत्तर देने हैं। फर्स्ट वन इज Gandhiji's sole companions at high school were his books and lesson, why? हाई स्कूल में गांधी जी के एकमात्र मित्र उनकी
पुस्तकें और पाठ थे, क्यों? यहाँ पूछा गया है बेटा बच्चों, गांधी जी सोल कंपेनियन एट हाई स्कूल वर हिज बुक एंड लेसन वाई। मीन्स गांधी जी हाई स्कूल में गांधी जी के एकमात्र फ्रेंड उसकी बुक्स, उनके किताबें और उसके लेसन थे। वाई, क्यों? सो लेसन इज आंसर इज गांधी जी सोल कंपेनियंस at school were his books and lesson because he was very shy and avoid all companies okay. so हाई स्कूल में जो हाई स्कूल था बच्चों, हाई स्कूल में गांधी जी के एकमात्र फ्रेंड उनकी बुक्स और उनके लेसन थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे बहुत शर्मीले थे, शाय फील करते थे और वे सभी की संगति से बचते रहते थे। ओके, वो किसी के साथ भी रहना पसंद नहीं करते थे। ऐसा नहीं था कि पसंद नहीं करते थे, बट वो बस कंपनी से डरते थे, मतलब बचना चाहते थे। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई मेड गांधी जी डू हिज लेसन दो हिज माइंड वॉज नॉट ऑन दैम। किस बात ने गांधी जी को अपने लेसन पूरे करने को मतलब ऐसा कौन सा बात था, कौन सी बात थी जिसने गांधी जी को अपने लेसन को पूरा करने को प्रेरित किया, जबकि उनमें उनका मन नहीं लगता था, लेसन पढ़ने में उनका मन नहीं लगता था। लेकिन ऐसा कौन सा बात था जो जिससे उनको इंस्पिरेशन मिलता है, प्रेरणा मिलता है। सो आंसर इज ऑल्दो गांधी जी डिड नॉट हैव हिज माइंड ऑन द लेसन बट ही डिड them because he disliked being taken to task by his teacher as much as he disliked deceiving them. Okay, so although यद्यपि हालांकि गांधी जी का मन उनके लेसन में नहीं लगता था, पर वे उससे पूरा करते थे क्योंकि उन्हें अपने टीचर से सजा पाना उतना ही नापसंद था जितना उन्हें धोखा देना था। ओके, ठीक है, मतलब उनको किसी को धोखा देना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो अपने लेसन को पूरा करते थे, कंप्लीट करते थे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हाउ डिड द बुक एंड पिक्चर्स ऑफ श्रवण अफेक्ट गांधी जी। श्रवण की पुस्तक और चित्रों ने गांधी जी पर कैसा प्रभाव डाला। सो आंसर इज द बुक एंड पिक्चर ऑफ श्रवण लेफ्ट एन indelible inspiration of Gandhi ji mind. He thought that it won an example for him worthy of copying. Okay, so श्रवण की पुस्तक और चित्रों ने गांधी जी पर एक अमिट छाप छोड़ी जो कभी नहीं मिट सकता। ऐसी पिक्चर छोड़ी, ऐसी छाप छोड़ी। उन्होंने विचार किया कि वह उनके लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है जिसे उनको फॉलो करना चाहिए, कॉपी करना चाहिए। ऐसा एक एग्जाम्पल है श्रवण कुमार की बुक। ओके, ऐसा वो मानते हैं। Question number 4 is which idea did the play Harishchandra inspire in him? हरिश्चंद्र नाटक ने उनमें किस आदर्श को प्रेरित किया? ओके, सो द प्ले हरिश्चंद्र इंस्पायर इन हिम द आइडियल ऑफ बीइंग ट्रूथफुल। ओके, सो हरिश्चंद्र नाटक ने उनमें सत्यवादी होने के आदर्श को प्रेरित किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई डिड गांधी जी वीप पिट्यूसली। गांधी जी क्यों कतार भाव से रोए? ओके, सो द थॉट ऑफ द ऑडियल हरिश्चंद्र हैड टू पास थ्रू मेड गांधी जी वीप पिट्यूसली। ओके, सो हरिश्चंद्र द्वारा अपने चरित्र की कठोर परीक्षा के दौरान झेले गए कष्टों को याद करके गांधी जी कतार भाव से रो पड़े। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ गुड हैंड राइटिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स। ओके बेटा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ गुड हैंड राइटिंग। ओके, सो जो बेटा गुड हैंड राइटिंग, अच्छी हैंड राइटिंग का क्या महत्व है। ओके, सो इम्पोर्टेंट ऑफ गुड हैंड राइटिंग हम देखेंगे
क्या विशेषताएं हैं अच्छी हैंडराइटिंग लिखने का? ओके, अच्छे नोट्स बनाने का। हेल्प इन ब्रेन डेवलपमेंट, ये हेल्प करता है आपके ब्रेन को डेवलप करने के लिए। अट्रैक्ट गुड मार्क्स मिलते हैं इससे। इम्प्रूव राइटिंग स्किल, इससे आपकी राइटिंग स्किल, लिखने की स्किल जो है बेटा, क्षमता है, वो इम्प्रूव होती है। बुक्स कॉन्फिडेंट, ओके, सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इससे क्या होता है बेटा, आपकी पर्सनैलिटी में भी इम्प्रूवमेंट होती है, डेवलपमेंट होता है। ओके, लेट्स सी वोकेबुलरी पोर्शन। ओके, एंड ए सेक्शन इज थिंक ऑफ द नेम महात्मा गांधी एज यू रीड हिज नेम, सम अदर वर्ड्स कम टू योर माइंड, लिस्ट सम ऑफ द वर्ड्स। ओके, लिस्ट सम ऑफ द वर्ड्स। बेटा आपको क्या करना है इसमें, थिंक ऑफ द नेम्स, आपको नाम सोचना है महात्मा गांधी जैसे। एज यू रीड हिज नेम, जैसे आप महात्मा गांधी का नाम पढ़ते हो। सम अदर वर्ड कम टू योर माइंड, तो इससे आपके माइंड में, आपके दिमाग में और भी कोई शब्द आते होंगे, अदर वर्ड्स आते होंगे। लिस्ट सम ऑफ दोस वर्ड, तो उन सभी वर्ड्स को आप क्या करो, लिस्ट करो। मतलब जैसे कि लिखो, जैसे ही महात्मा गांधी का नाम सुन के आपके मन में कौन कौन से वर्ड आते हैं। फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल नॉन वायलेंस, ओके, फॉर एग्जाम्पल नॉन वायलेंस, ठीक है। तो जैसे हम महात्मा गांधी जी का नाम सुनते हैं तो हम सुनते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, ट्रूथफुलनेस, ओके, हॉनेस्टी, ईमानदार थे, फ्रीडम, स्ट्रगल, ठीक है, आज़ादी के लिए लड़े थे। फादर ऑफ द नेशन, हमारे वो राष्ट्रपिता कहलाते हैं, ओके, फादर ऑफ द नेशन। एंड दांडी मार्च किया था, सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ओके, लाइक दिस एक्सेट्रा। B section B, look at this B. Look at the word recollecting in column D. The word is made of prefix RE, prefix root word collect and suffix ION. Nation, put prefix in column A, root word in column B. Okay. Suffix in column C. And the word in the last column D, use any of the two columns of all three columns. Column B is compulsory. Okay, बेटा इसमें क्या करना है, कॉलम ए जो है वो प्रीफिक्स का है, ठीक है, मीन्स हमें इसमें प्रीफिक्स लिखना है, ओनली प्रीफिक्स। जैसे प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड्स के आगे लगता है, ओके। रिकलेक्शन में RE जो है वो प्रीफिक्स हो गया, और कलेक्शन में रिकलेक्शन जो लिखते हैं तो लास्ट में TION आता है, वो क्या हो जाएगा, वो सुफिक्स हो जाएगा, ठीक है, सफिक्स। और इसका जो रूट वर्ड है वो क्या हो जाएगा, COLLECT, ये जो है हमारा रूट वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीफिक्स क्या है, RE प्रीफिक्स एंड रूट वर्ड COLLECT कलेक्ट एंड सफिक्स ION। सो मिलकर क्या बन जाएगा बेटा, रिकलेक्शन। सेकेंड वन इज REC एंड रूट वर्ड CYCLE cycle and the suffix is ING, so the word is recycling, okay. Prefix UN, root word FAITH, faith, and suffix is FUL, full, unfaithful, okay, the word is unfaithful. And the fourth one is RE, root word UNION, union, and there is no suffix, reunion, okay. And the third one is RE, and root word is ARRANGE, arrange, and the suffix is MENT, meant, so the word is rearrangement, okay. Fifth one is RE, and the root word is DIRECT, direct, and the suffix is ION, okay. So redirection, the word is redirection. And the sixth one is UN, and the root word is RELY, really, and the suffix is ABLE, able. So the word is unreliable, okay, unreliable. Prefix is RE, and the root word is FORMAT, format, and the suffix is ION, so reformation, okay. And the eighth one is RE, and the root word is ACTION, action, so reaction, okay, the word is reaction, no suffix. So you make also 5 new words, okay, with prefix, root word and suffix, and comment.
आपको क्या करना है बेटा, ऐसे ही 5 और बनाने हैं जिसमें आपको प्रीफिक्स अलग से शो करना है, रूट वर्ड शो करना है एंड सफिक्स, वैसे ही आपको वर्ड्स फिर बनाना है। ओके, ऐसे ही आपको करके क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है हमको। ओके, लेट्स सी सेक्शन सी। Section C, consult a dictionary and frame sentence using the following word। आपको क्या करना है बेटा, डिक्शनरी में कंसल्ट करना है। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ना यहाँ आपके बुक में कॉलम्स में, आपको उसको देखो, जैसे सबअर्बन। ओके, सबअर्बन मीन्स होता है शहर के आसपास का इलाका, ठीक है। एंड द सेकेंड वर्ड इज मेडिक्योर, मेडिक्योर में सामान्य। थर्ड वन इज पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ यात्रा या तीर्थयात्रा, हाँ तीर्थ यात्रा। एंड द फोर्थ वन इज रिबक मीन्स डांटना। एंड द फिफ्थ वन इज इंडेलिबल मीन्स जो मिटाया ना जा सके। एंड द लास्ट वन इज सिक्स्थ वन इज फॉल्स नोशन मीन्स गलत धारणा। ओके, सो बेटा आपको इसी की हमने वर्ड बता दिए हैं, अब आपको क्या करना, सेंटेंस बनाना है। सबअर्बन मीन्स जो शहर के आसपास का इलाका। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस, माई पेरेंट्स लिव इन अ सबअर्बन एरिया। ओके, सेकेंड मेडिक्योर सामान्य। सेंटेंस, शानू हैज बिकम IAS तो ही वॉज अ मेडिक्योर स्टूडेंट। ओके, माई पेरेंट्स हैव गॉन टू वैष्णो देवी ऑन पिलग्रिमेज। ओके, एंड द फोर्थ वन इज रिबोक मीन्स डांटना। सेंटेंस, हर पेरेंट्स रिबोक हर फॉर टेलिंग लाई। ओके, सभी के माता पिता डांटते हैं झूठ बोलने पर। फिफ्थ, इंडेलिबल जो मिटाया ना जा सके। द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र लेफ्ट एन आइडियल इम्प्रेशन ऑन गांधी जी। सिक्स्थ, फॉल्स नोशन गलत धारणा। एंशियंट पीपल हैड अ फॉल्स नोशन दैट द अर्थ इज फ्लैट। Let's see grammar section. Grammar, okay, व्याकरण। Now think of something which you used to do in your childhood that you don't do now. Okay, write sentence with used to। आपको क्या करना है बेटा, इसमें बोला गया है नाउ थिंक ऑफ समथिंग, आपको वो सभी चीज़ें सोचनी है, उसके बारे में सोचना है। विच यू यूज टू डू इन योर चाइल्डहुड, जिसे आप अपने बचपन में करना चाहते थे। दैट यू डोंट डू नाउ, जिसे आप नहीं कर पाए। राइट सेंटेंस विथ यूज टू, आपको क्या करना है, यूज टू की हेल्प से उस सेंटेंस बनाकर लिखना है। आई यूज टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। देखो, जिसे आप अभी नहीं कर सकते, जिसे आप बचपन में करना चाहते थे। आई यूज टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, फर्स्ट वन। सेकेंड, आई यूज टू प्ले मार्बल। देखो, आई यूज टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, मैं डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहती थी। सेकेंड, आई यूज टू प्ले मार्बल, मैं मार्बल के साथ, कंचे के साथ खेलना चाहती थी। आई यूज टू सिंग व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटी थी तो गाना गाना चाहती थी। When I was child, I used to drink milk, मैं जब बच्ची थी तो मैं दूध पीना चाहती थी। फिफ्थ, When I was child, I used to go temple with my grandmother, जब मैं बच्ची थी तो मैं अपनी दादी माँ के साथ मंदिर जाना चाहती थी। सेकेंड वन इज बी सेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द क्लोज। आपको क्या करना है, क्लोज की मदद से, है ना, आपको इन ब्लैंक्स को क्या करना है बेटा, फिल करना है। सो गोविंदा यूज टू कम लेट टू स्कूल, टू क्लास, कम। ओके, यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है, इसी का आपको इसी की मदद से आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। तो गोविंदा यूज टू कम लेट टू स्कूल। सेकेंड, लेट ईयर वी यूज टू प्ले क्रिकेट every Saturday, but now we have class on Saturday. Third one is, in the past year people used to theater for watching movie. Now they view movies through CDs. Okay, and the fourth one is, when I was a child I never used to drink tea or coffee, but now I like both. Fifth, he used to learn music when he was young. Look at the section C. First one is, Gandhiji enjoyed the affection of his teacher.
So answer, what did Gandhiji enjoy? Okay. Second, he wept piteously. What did he weep? Third, he never took part in any physical activities. What did he never take part? And here are some sentences from question section. The words from the list given below and below one is done for you. Okay, what were, when, why, how. Okay, इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, लिखा हुआ है बेटा, here are some sentence frame question, select the word from the list given below, one is done for you. एक आपके लिए किया गया है, यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है ना, ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, what, were, when, why, how. इसकी मदद से आपको क्या करना है, यहाँ सेंटेंस में करना. ओके, सो फर्स्ट वन इज आई लेफ्ट होम एट 8 PM. सो व्हेन डिड यू लीव होम, आपको क्वेश्चन बनाना है. सेकेंड, I arrived at Buster at 9 AM. When did you arrive at Buster? Third, the match began at the 11 AM. When did the match begin? Fourth, the class for the day ended at 5 PM. Answer, when did the class end for the day? Fifth, the bought a gift for my friend birthday at 6 PM. Okay, so answer, when did we buy a gift for my friend birthday? Okay. Sixth, we went to the market by we went to the market by taxi. How did we go to the market? And the last one is, the taxi man charged ₹1,000 for finding a hotel. The taxi man charging ₹1,000 for finding a hotel. Why did the taxi man charging ₹1,000? Okay, so here the video is completed. If you like it, so like, comment and share please. Okay, so thank you for watching this video.